So hello everyone, I am Ayush Gupta. I have secured 98th rank this time. This was my second attempt, and in my first attempt also I was in the reserve list and I got the post of Assistant Security Commissioner in RPF. So first of all I would like to thank Khan sir for giving us this platform, and I would also like to congratulate everyone who is sitting here. And not just congratulate all those who are sitting here, I would also like to appreciate all those who couldn't make into the list this time, and I would wish best of luck to them. So first of all, what I think the three things which are important for these exams are confidence, strategy and consistency. So first, everyone should have the confidence that they can clear this exam, and only after that, having that confidence, they should start making a strategy which will help them to clear this exam. And with strategy also you should include the consistency as well as the patience to clear this exam, because not everyone will be lucky enough to clear this exam in the first attempt or the second attempt. So having a patience is also a very key input for this examination. Now today I have been given the topic to speak about the newspaper reading, and I would like to cover it very holistically. So first of all, I think that newspaper reading is the first introduction to any aspirant with regards to what a civil servant is expected to do. So we read the static part from the NCERT books, or we take the coaching materials, but ultimately it is through the newspaper that we come to know that all these things are happening around us, and only through the newspaper we are able to see actually what the topics have been mentioned. For example, while we were preparing in the 2018, there was an impeachment against the Chief Justice of India. So we all must have read this in the Lakshmikant book or in the polity classes. But through that process, we came to understand that for impeachment, a motion has to be passed. Then it will have to be cleared by the chairperson in the Rajya Sabha or the Lok Sabha, and only after that it will proceed. Similarly, the anti-defection law in India is very popular in various states. So so these things can be understood only through the newspapers. Secondly, newspaper reading must be a daily aspect. You should include consistency in the newspaper reading. So if I give my example, I started reading newspaper in December 2017 while I was taking the GS coaching, and from December 2017 to the mains I gave this year was January 2021, I did not miss a newspaper for a single day. Even I had given a prelims examination, or there were some problems at my at personal level, I used to read the summary of newspaper. If मतलब अगर पूरा newspaper नहीं पढ़ा होगा तो editorial and front page I used to cover, and I had did it for 3 to 4 years on a daily basis. So I think that reading newspaper is a very important thing. And तो जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको 3 आवर्स या 3.5 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते हैं, कोई भी जब स्टार्ट करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इतना टाइम लगता है, तो उसके कारण स्टूडेंट सोचते हैं कि ये डेली करंट अफेयर्स में तो आने ही वाला है किसी न किसी वेबसाइट के, और इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स एक न्यूज़पेपर कवर नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा करंट अफेयर्स के सोर्सेज कवर करते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स को स्किप कर देते हैं। बट आई थिंक कि ऐसे टाइम पे न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहिए, और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो 3 आवर्स आपको स्टार्टिंग में लग रहे हैं न्यूज़पेपर कवर करने को, वो ग्रेजुअली आपको 1 आवर या 45 मिनट्स टू 1 आवर में आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका 45 मिनट्स से 1 आवर में एक न्यूज़पेपर कंप्लीट हो रहा है, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग दैट यस आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इसके बाद और भी एस्पेक्ट होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में कि जैसे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे जब राम जन्मभूमि का जजमेंट या जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जजमेंट इन रिसेंट हिस्ट्री, और अराउंड 1 मंथ और 45 डेज तक ये रोज़ रिपीट हो रहा था कि पूरी हिस्ट्री आ रही थी उसकी, और आज क्या चल रहा है ये आ रहा था। तो ऐसे टाइम पे उसको इग्नोर कर सकते हैं, और जो स्टार्टिंग में हमने एक बार पढ़ रखा है कि इसकी बेसिस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद जब जजमेंट आएगा तो हम उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं कि इस जजमेंट में क्या कहा है। तो इस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में पढ़ना, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। मतलब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है।
तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे और हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे द सिटी न्यूज़ हो गई, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, या न्यूज़ जो रोज़ रिपीट हो रही है, इनको कैसे अवॉइड करना है, ये सब भी हमें आ जाएगा। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करें या पढ़ने के बाद स्टार्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि एक बार कोई टॉपिक ख़त्म नहीं होगा जब तक, तब तक तो आंसर रीडिंग स्टार्ट नहीं करना है। पर अगर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन है कि नहीं हमें आंसर लिखना ही है तभी हमारी प्रिपरेशन सक्सेसफुल है, तो अगर आप न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में जैसे 2 एडिटोरियल आते हैं, तो अगर आप उसे 10-10 मिनट्स लगा के भी उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो इन 20 मिनट्स आपका एक फेयर अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग तो कवर हो जाएगा, उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने आंसर लिखा है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको आगे हेल्प करेगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नेगेटिव थिंग भी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ गलत ही हो रही है, और वो चीज़ बहुत एक गलत एटीट्यूड हमारे एग्ज़ाम के लिए बना देती है कि हर बार कोई भी कॉलम आती है तो जनरली वो क्रिटिक ही होता है, स्पेशली एक न्यूज़पेपर में। तो वो एडिटोरियल तो पूरा ही ऐसा होता है कि मतलब हम ख़त्म ही हो गए हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके सामने सिर्फ क्रिटिक है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक बैलेंस ओपिनियन बनाना होता है, और बैलेंस ओपिनियन के साथ एक पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप आंसर लिख रहे हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है वो यही चाहता है कि आप हमारी जगह आए और आप कुछ अच्छा करें। तो इसके लिए न्यूज़पेपर के साथ कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज भी हमें इंक्लूड करने चाहिए, जैसे PIB हो गया, या किसी मिनिस्टर की स्पीच हो गई, या योजना कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन हो गई। तो कुछ भी एक सोर्स हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी या एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा जो मेरा अप्रोच था न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो एक फ़िल्टरिंग अप्रोच होता था कि मतलब पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया लेकिन एक एक वर्ड पे इतना ध्यान नहीं दिया, जो हमें लगा कि यार ये तो हमको पता नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और जो ऑलरेडी आता है, क्योंकि जनरली इतने बड़े न्यूज़पेपर में हर चीज़ तो नहीं हो नहीं सकती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उनकी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं कि हमें एडिटोरियल ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, और हर चीज़ हमारे लिए इतनी काम की नहीं होती है। तो उसे एज ए फ़िल्टरिंग अप्रोच यूज़ करो कि जो हमारे लिए काम का है हम उसे याद करें, अगर कुछ उसमें ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है हम उसे गूगल करें या न्यूज़ से पढ़ें या किसी टीचर से पूछें। तो एक फ़िल्टरिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो प्रैक्टिस ही है, क्योंकि जब तक आप न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे आपको उसका इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आएगा, और किस तरह से पढ़ना है वो भी समझ नहीं आएगा। अदर देन दिस, अगर मैं मेरी अप्रोच की बात करूँ तो आई वुड लाइक टू इंक्लूड माई जर्नी इन PSI और ऑप्शनल ऑल्सो, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा रिजर्व लिस्ट में आया था और मेन लिस्ट में सिर्फ 8 मार्क्स से कट ऑफ छूटा था, और मेरा ऑप्शनल में 242 मार्क्स थे पॉलिटिकल साइंस। और जनरली स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि जो पेपर 1 स्टैटिक पार्ट होता है उसमें 140 के अराउंड आए थे, और जिसमें मतलब उसमें मेरे तो 110 आए थे, पर जनरली स्टूडेंट के 130-140 आए थे, और पेपर 2 जिसमें 110 के आसपास आ रहे थे लोगों के, उसमें मेरे 133 आए थे। तो इस बार मैंने बस फोकस किया था कि जब मैंने एनालाइज़ किया तो ऐसा लगा कि सिर्फ 8 मार्क्स से मेरा कट ऑफ रह गया है, तो अगर मैं ये 8 मार्क्स तो किसी भी पेपर में ला सकता हूँ, और जब पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में इतना ज़्यादा स्कोप था तो मैंने उसी पे फोकस किया, और इस बार मेरे 156 आए हैं पेपर 1 में और 133 आए हैं पेपर 2 में। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि स्कोप हमेशा रहेगा इम्प्रूवमेंट का, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके इसमें स्कोप क्या है, कितना है, और उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑल्सो अब जो प्रीलिम्स के मॉक्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स आने वाला है 2 या 3 दिन बाद, और काफ़ी एंग्जाइटी तो सभी में रहती है, जिसने पहले प्रीलिम्स क्लियर किया उसमें भी रहती है, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट रहता है उसमें भी रहती है, और काफ़ी लोग मॉक्स देते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब 2020 का मैंने प्रीलिम्स दिया था तो जनरली मेरे टेस्ट सीरीज़ में 50 क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 2019 का हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, और मैं काफ़ी पॉजिटिव था कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगस्त में रिज़ल्ट आया और मेरा नाम नहीं था, फिर पढ़ना पड़ा, और जब स्टार्ट किए तो प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, 50 प्लस तो एक ही टेस्ट में सही हुआ था, उसके अलावा 50 से कम ही हो रहे थे। तो मैंने तो टेस्ट देना ही छोड़ दिया कि अब जो होगा वो फाइनल दिन होगा, और उस दिन भी पेपर देके तो ऐसा ही लगा कि सब कुछ गलत ही हुआ है। मैं मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था बीच वाले ब्रेक में, तो हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे आगे क्या करना है, पर बाद में जाके जब आंसर की आई तो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ गए। तो
एक यही है प्रीलिम्स में कि पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, रादर यू शुड बी ओवरराइडिंग द पेपर, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, और जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे इस अप्रोच के। और जैसे जैसे ये टॉपर स्टॉक आगे बढ़ती जा रही है, काफ़ी जो देख रहे हैं वीडियो उन्हें ये लगेगा कि सब लोग डिफरेंट बोल रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आई विल से कि जो वो लोग डिफरेंट बोल रहे हैं उसे इग्नोर करो, और सभी टॉपर्स ने कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर सी बोली है उसको इनकॉर्पोरेट करो। जो डिफरेंट है वो तुम्हारे अंदर है और वो अगले साल यहाँ दिख सकता है। सो with this also I would like to add that another problem is of the self motivation, and like Radhika said that you should think like an officer, और तो वो अगर अप्रोच रहेगी तो जो सेल्फ मोटिवेशन रहेगा वो अपने आप आएगा। आप उसे कोरोना से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जो ऑफिसर्स है इंडिया में, कोरोना के टाइम सभी के लिए नया था, नए चैलेंजेस थे, पर इफ़ एवरीवन वुड हैव फेल्ट डीमोटिवेटेड कि आगे क्या हो सकता है, तो जो हमारे इतने लोग मरे क्या पता इसकी जो काउंट था वो और ज़्यादा हो जाता। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, थिंक लाइक एन ऑफिसर। जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसे आगे बढ़ो। सो आई वुड लाइक इट टू एंड इट विथ 3 words, दैट्स स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू।